तो नेक्स्ट पार्ट हम इसमें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हमने वीडियोस में पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो इसमें हम करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। We are also familiar with the modes of reproduction that depend upon the involvement of two individuals. कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अच्छे से फेमिलियर है, कि हमने पढ़ा था कि न्यू जनरेशन से डी जनरेशन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है। इसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कोई भी एक वुड है, ठीक है, वुड का एक पीस है, उसका छोटे छोटे पीसेस में अगर काट दोगे तो वो एक छोटा सा पीस एक न्यू इंडिविजुअल से दोबारा एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ऐसे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ऐसे हमने रिप्रोडक्शन ये की है। ठीक है, पर इसमें हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। We are also familiar with the modes of reproduction that depend upon the involvement of two individuals before new generation can be created. Buds alone cannot produce new leaves, nor can hen alone produce new chicks. कि जो अकेली हेन्स कोई भी और न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, न्यू चिक्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ये जो काम होता है वो दोनों सेक्सेस का होता है। यहाँ पे कौन से सेक्सेस आ जाते हैं, एक तो दो सेक्स है, दो सेक्सेस होते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि दो सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। ये दोनों चाहिए, दीज आर बोथ नीडेड फॉर अ reproduction. They are needed to produce the new generations. What is the significance of this sexual mode of reproduction? कि इसका significance क्या है, ये दोनों क्यों चाहिए, ये दोनों why these are necessary for the reproduction, for the sexual reproduction, why only these two sexes, male and female, are required for the reproduction. What is the significance of the sexual mode of reproduction? Are there any limitations of asexual mode of reproduction? asexual mode of reproduction की कोई limitation है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। Why the sexual mode of reproduction? ये sexual mode of reproduction क्यों है? The creation of two new cells, तो दो new cells बने हैं, in which one cells involves a copying of DNA, जो एक सेल क्या करता है, DNA की कॉपिंग में इन्वॉल्व होता है, as well as of the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noticed, cannot be absolutely accurate. जो DNA copying mechanism है, it cannot be accurate, ये बिल्कुल accurate नहीं हो सकता, and the resulting errors are a source of variations in the population of organisms. So जहाँ तक मैंने आपको बताया, मैंने आपको आई थिंक ये 7th पेज है इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज से, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग से आपको बताया था कि वेरिएशंस तो आएंगी। ठीक है, वेरिएशन तो वर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो से ही, हर वीडियो में वेरिएशन वर्ड तो आपको मिल ही रहा होगा। वेरिएशंस तो आएंगी आपको, जैसे मैंने बताया था 99.9% जो है हमारा सेम होता है। ठीक है, और 0.1 का डिफरेंस आएगा ही, अगर ये नहीं होगा 0.1 का डिफरेंस तो हम सब सेम लगेंगे, तो सिमिलैरिटी ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी हमको मिलेगी नहीं, हम सब हमारे भाई बहन सब आइडेंटिकल लगेंगे, हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे। Every individual organism cannot be protected by variations, but in a population, variations are useful for ensuring the survival of the species. But variations useful है for ensuring the survival of the species. It would therefore make sense if organisms come up with the reproductive modes that allowed more and more variations to be generated. While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, DNA copying mechanisms absolutely accurate नहीं होते, they are precise enough to make the generations of a variation a fairly slow process if DNA copying mechanisms
what to be less accurate, अगर ये less accurate होते हैं then many of the resultant DNA copies would be not able to work with the cellular apparatus and it would die. So how can the process of making variants can speed it up? So ये कैसे इतनी speeded up होते हैं process? Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generations. There's two different individuals in a population, so दो different individuals है एक population में would have different quiet patterns. इसकी different quiet patterns होते हैं of accumulated variations. Since all the variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining variations को combine करते from more or two or more individuals would and thus create new combinations of variants. Each combination would be novel. जो each combination है वो novel होगा since it would involve two different individuals. जो sexual mode है basically इसमें ज़्यादा पढ़ने की वाली बात नहीं है, ये सब बातें लिखी हुई हैं. Sexual mode of reproduction incorporates. Sexual mode of reproduction है वो incorporate करता है. क्या incorporate करता है? Process of combining DNA को combine करने के लिए operate करता है from two different individuals during reproduction. But this creates a major difficulty. ये difficulty create कर देता है. If each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to be mess to control the cellular apparatus of DNA. How many ways can we think it for solving the difficulty? How can we solve the difficulty? हम कैसे solve कर सकते हैं? So we have seen earlier that as organisms become more complex, ये organisms जो है complex बन रहे हैं, ठीक है. The specialization of tissue increases. जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल है, सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. So one solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special linkages in the specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. This is achieved by the process. इसे कैसे अचीव होगा? सेल डिवीजन से. उसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस, ठीक है. सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, उसको मियोसिस कहते हैं. तो एक तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टर्म्स, डोंट कंफ्यूज द टू टर्म्स. वन इज माइटोसिस and one is meiosis. This part you will study in +1 in detail. So one is meiosis. What is meiosis? So meiosis that occurs in the germ cells. What is germ cells? Germ cells are sexual cells, है ना. और one it is mitosis. माइटोसिस कब होती है? मैं आपको दोनों मीनिंग समझा देती हूँ. ये मियोसिस है, ठीक है. मियोसिस पढ़ रहे हैं अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो मियोसिस कब होगी? याद रखना, मियोसिस तब होगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. माइटोसिस कब होगी? ठीक है. ये मियोसिस है, दोनों एम से शुरू होती हैं बट वो माइटोसिस है. सो माइटोसिस कब होती है? यहाँ पे मियोसिस होती है, ठीक है. मियोसिस तब ही होगी जब सेक्सुअल जर्म सेल्स में होगी, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मियोसिस होता ही है जब एक मेल और एक फीमेल दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? जाइगोट. ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल. तो माइटोसिस क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? सो माइटोसिस, मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आप खेल रहे हो और आपको चोट लग गई है, ठीक है. आपको हाथ में चोट लग गई है, आपका मतलब जो है ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, ठीक है. तो आपका ब्लड जो बेसिकली लॉस हुआ है ब्लड, वो ब्लड जो है आप कॉटन लोगे, फर्स्ट एड करोगे, ब्लड रुक जाएगा, है ना. तो वो धीरे धीरे क्या देखोगे कि वहाँ पे एक ब्राउन सी लेयर आ जाएगी, ठीक है. तो मतलब वो जो है, वो जो उसका प्रोसेस होता है, ठीक होने का प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस, ठीक है. उसके भी एक पूरा सेल साइकिल, सेल डिवीजन का पूरा एक साइकिल होता है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो ये फेजेस होते हैं सारे आ जाते हैं
किस में आते हैं, माइटोसिस में आते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है। ये जो होता है मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। सो व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स, ये जब दो सेल्स कंबाइन होते हैं, कौन से सेल्स, मेल और फीमेल के, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, आपको ये पता होगा कि जो मेल होता है, जो फीमेल होती है, उसमें उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को एक्स एक्स से, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स से, और जो मेल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से। इसकी मैं आपको अलग से वीडियो डालूंगी कि एक्स एक्स से हम फीमेल को और एक्स वाई से हम मेल को। तो क्या होता है कि जो जाइगोट बनाने के लिए, मतलब जो जाइगोट आएगा, मतलब मान लो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मान लो कि आपके घर में कोई न्यू बेबी आने वाला है, ठीक है, या आपकी मदर के लिए न्यू बेबी आने वाला है, ठीक है, आपका भाई या बहन आने वाला है, ठीक है। तो आपको श्योर नहीं है कि वो गर्ल होगा या बॉय होगी। ऑल्दो इंडिया में तो ये बात रिस्ट्रिक्टेड होती है, पर फॉरेन कंट्रीज में ये बात पहले बता देते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि अगर लड़की होगी तो हम इसको मार डालेंगे। ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा होता था, अब भी कहीं कहीं जगह पे ये होता है, इसलिए इंडिया में बैन है, बताते नहीं, ठीक है। तो मान लो आपका कोई छोटा भाई या बहन आने वाला है, तो आपको पता नहीं है कि वो गर्ल है कि बॉय, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि आपकी मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, फादर के पास एक्स वाई, तो मदर जो है एक्स देगी और फादर जो है, सो अगर मान लो हम जब अजम्पशन, सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, मदर एक्स देगी तो फादर, मदर के पास एक्स एक्स है, फादर के पास एक एक्स है और एक वाई है। सो एक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फीमेल। तो मदर के पास दोनों फीमेल है, दोनों एक्स एक्स है, और फादर के पास एक फीमेल है और वाई को हम मेल कहते हैं, एक मेल है, तो मदर तो एक्स ही देगी। सो ये फादर पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में ये बहुत मानता है कि अगर गर्ल होती है तो सभी जो है ब्लेम करते हैं मदर को कि गर्ल की हुई। एक्चुअली इसमें जो है फादर का ब्लेम आता है, क्योंकि फादर पे डिपेंड करता है कि वो एक्स देगा कि वाई देगा, ठीक है। तो मदर तो एक्स ही देगी ना, फादर पे डिपेंड करता है। अगर वो फादर एक्स देता है तो वो यहाँ पे 50% चांसेस है कि, मतलब यहाँ पे आपके 50% ऐसे गर्ल होगी कि बॉय होगी, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है फादर के ऊपर। तो यहाँ पे इंडिया में ब्लेम करते हैं कि मदर को, कि मदर ने गर्ल क्यों दी। तो ये पूरा डिपेंड करता है फादर के ऊपर कि वो एक्स देगा कि वाई देगी, ठीक है। तो इफ द zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. So in very simple organisms, it is seen that the two germ cells are not very different from one another. तो दो germ cells कौन से, मेल और फीमेल, वो इतने जो है दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, इतने डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से, और मे इवन भी सिमिलर भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, बट एज द बॉडी डिजाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे बॉडी डिजाइंस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, कि जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज होंगे। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स, एक जर्म सेल लार्ज है, जर्म सेल क्या है, एक तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, एक लार्ज है और एक क्या करता है, फूड स्टोर करता है, वाइल द अदर इज स्मॉल, इट एंड लाइकली टू बी मोटाइल। मोटाइल मीन्स जो उसकी मूवमेंट है, ठीक है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट, जो मोटाइल जर्म सेल है वो क्या क्या कंटेन करता है, वो मेल गैमीट है। बेसिकली जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं जो मेल, स्पर्म्स मेल होते हैं, ठीक है, और जो स्पर्म्स है बेसिकली वो ही आते हैं फीमेल के पास, तो उसका क्या बनता है, जाइगोट।
जैसे इसकी जो फ्यूजन होती है, जो एक फीमेल की और स्पर्म, जो मदर के पास क्या होता है, ओवम, मदर के पास ओवम होता है, फादर के पास क्या होता है, स्पर्म। जब बेसिकली स्पर्म और ओवम की फ्यूजन होती है तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। जाइगोट को हम क्या कहते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है। कन्वेंशनली मोटाइल, मोटाइल जो मोटाइल मतलब जो मूव कर रहा है, जो मेल है यहाँ पे, मेल सेल, जो मोटाइल जो मेल सेल इज कॉल्ड एज द मेल गैमीट एंड द germ cell containing the stored food that is called as the female gamete। जहाँ पे फूड स्टोर्ड है उसको हम फीमेल गेमीट कह रहे हैं। जो मोटाइल जर्म सेल जो मूव कर रहा है, जो जर्म सेल इज कॉल्ड एज, जो मोटाइल जर्म सेल है जो मूव कर रहा है उसको मेल कहेंगे। एंड जर्म सेल कंटेन फूड स्टोर, और जिसमें फूड स्टोर हो रहा है उसको हम फीमेल कहेंगे। ठीक है। वी शैल सी इन द न्यू टेक्स्ट few sections that how to create these different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of the male and female organisms। ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम में शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई video and please comment।